Good morning, dear students. I Vidya Sagar, your SS teacher. Welcome you all in the e-learning class of Modern International School Hiswa. Today I am going to start subject History of Standard 8, and this is second video lecture on the topic Educating, Civilizing the Native and Educating the Nation. Dear students, as we have discussed that how the William Jones they have came here and how they have started learning the different language, and being a linguist they also learn many of the language. But as we also came to know that beside learning the language, what was the major view for the Indians among them? As we know that Jones and Colebrook, as they both have set up the Asiatic Society of Bengal. Okay, now they represent the particular attitude toward the India. They also shared the deep respect toward the ancient Indian language, as well as the India and the West. The Indian civilization, they felt that it having a glorious language, as well as nowadays these glories has been declined. They were thinking that if we will find out about the ancient glory, then we could learn well about that, and we could also do the mastery over this language. And if we'll found the mastery over this language, then people will have a disrespect among us. It means we will master our language, and those peoples who living in India, they will know that we are able to understand their language, then they will consider us better. वो हमें जो है, अगर हम इनकी भाषाओं को पूरी तरह पढ़ पाते हैं तो वो हमें क्या करेंगे, अपने मतलब कि एक स्वेच्छा से जो है हमें सर्वोपरि मान लेंगे, ठीक है, और उन्हें जो है यहाँ पे राज करने में भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। यानी कि वो लैंग्वेज के थ्रू जो है वो फोर्सफुली तो अपना सकते थे, फोर्सफुली जो है वो धीरे धीरे अधिग्रहण कर रहे थे, लेकिन लैंग्वेज सीखने के बाद क्या है कि लोगों के दिल में वो जो है वो एक जगह बनाना चाहते थे। ओके, कहते हैं कि फॉर दोज टेक्स्ट could reveal the real ideas, law of Hindu and Muslim. Only new study of these texts could form the basis of future development in India. यानी यही जो है पुरानी रीति रिवाज जो है ये नए भारत के विकास में जो है महत्वपूर्ण योगदान देगी, उनका ऐसा मानना था. So both of them went to discovering this ancient text, understanding their meaning, translating them, making findings to know to others. और इन चीज़ों में वो जो है जॉन्स और कॉलब्रुक ये दोनों लगे हुए थे और लैंग्वेज को जो है वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे. दे बिलीव दैट ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर, बट इट ऑल्सो हेल्प इंडियन टू डिस्कवर देयर ऑन हेरिटेज. यानी कि उनका ऐसा मानना था कि ना ही ये सिर्फ ब्रिटिश को जो है हेल्प करेगी, बल्कि इंडियंस को भी जो है वो अपनी विरासत को जानने में मदद मिलेगी. इट अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरियस पार्ट. यानी कि जो भी विरासत जो पहले के दिनों में अलग हो गई है वो अभी फिर से प्राप्त किया जा सकता है. एंड दस दे वुड बिकम द गार्डियंस ऑफ द इंडियन कल्चर एज वेल एज मास्टर्स. और इस तरह वो जो है एक अभिभावक के रूप में नेतृत्व कर पाएंगे. So, influenced by these ideas, these British officials, they have started and promote Indian rather than Western learning. और Western learning की अपेक्षा जो है वो Indian language को promote करना शुरू कर दिए. They felt the institution should be set up to encourage these language of ancient Indian text, to teach Sanskrit and Persian language and poetry. और इन्हीं सभी बातों को लेकर जो है वो क्या की कि अलग अलग सोचने लगे कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन को भी सेट किया जाना चाहिए ताकि वो संस्कृत और अरबी जो है वो सीख सके.
The official also thought that Hindu and Muslim taught already familiar with the valued and preserved. यानी हिंदू मुस्लिम जो है वो पूरी तरह से अपनी भाषा की समृद्धिता को पहचानते हैं. Not subjects alien to them and believe that, और ऐसा मानना था कि ब्रिटिश इन लैंग्वेज को अगर बढ़ावा देते हैं तो वो उनके दिलों में जो है जगह बना पाएंगे. और इन्हीं सभी ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो क्या किए, एक मदरसा सेट किए, है ना, इन 1781 इन कलकत्ता, एंड प्रमोट द अरेबियन पर्सियन इस्लामिक लॉ, है ना. और पर्सियन अरबी पारसी जो है वो लैंग्वेज को शुरुआत किए. कहते हैं कि द हिंदू कॉलेज वाज आल्सो इस्टेब्लिश्ड, और हिंदू कॉलेज भी जो है 1791 में जो है बनारस में सेटअप किया गया टू इनकरेज द एंशियंट संस्कृत लैंग्वेज. और जो एंशियंट संस्कृत लैंग्वेज थी उसको सेटअप किया गया ताकि ये जो है आगे चलकर वो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक भाषा बनाई जा सके. नॉट ऑल ऑफिशियल्स शेयर्ड दिस व्यू, मैनी वेयर स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ ओरिएंटलिस्ट. लेकिन ये जो चीज़ें थी ये सभी के द्वारा जो है वो पूर्णतः सपोर्ट नहीं किया जा रहा था. कुछ उसमें से ऐसे थे जो इनका विरोध भी कर रहे थे. ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.